Screen is visible to everyone or not? Yes, sir, visual. Okay, okay. Before we move to the class, we will talk something regarding our preparation, and thereafter we will move to class. Okay. Let me open my page. Only these people are there. Now, okay. Abjay and Piyush. Have you studied whatever RBI circular compilation I shared today? Have you taken a look? Akshay, Piyush, Themba, Bhaskar, anyone? No? It's long, No. very 389 pages Uh, book. yes. It is completely, it is 2.5 years. You will say around 2 years, 18 to From 20 to 24 months, 15. around. So, this note that for the CBO exam, specifically for the CBO exam, General Banking NI Act, Banking Regulation Act is, I am teaching this to you, but these are not very much relevant if you will go to the previous year papers of SBI CBO. Whatever RBI is doing, whatever you are doing in the banking, whatever you are daily routine, your daily routine in the branches, the most important thing they will ask related to this thing only. Therefore, focus much on this, and 1 year compilation of all banking and financial awareness, including economy and government scheme, is also ready. Actually, some corrections was there in the whatever I taught in the first batch. Therefore, I need to study all this and rectify it. That's why it was some delay. But within 2 days, that will also be shared. Your first preference will be not the NI Act and Banking Regulation Act and RBI Act. Note that I am teaching this, but these are not very important as if you compare with the RBI circulars and monthly banking and current affairs, including specifically government schemes related to social upliftment, agriculture, MSME, new MSME guidelines, new UPI guidelines are there. These are much important, and whatever you are studying nowadays, that uh, someone is studying Companies Act, someone is studying whatever IT Act. These are not important. If you will see the pattern, you earlier there was also, it has been around 3 4 years. SBI is recruiting CBOs, but in no year you will find that there is much. You will say the priority sector, but priority sector is not the core banking portion. It is also current. Every year in the April, in the month of April, you will find a circular related to priority sector. If you went through the RBI circular compilation in every month of April, wherever the compilation is there in April month, you will find all priority sector guidelines. Okay, this is the current guidelines. That's why they come under core banking portion. Still, if you will say that this is not the core banking portion like NI Act and Banking Regulation Act, IT Act, etc. Okay, these things we will focus, and whatever is the core banking, whatever is the most important thing, we will cover in this. Only one lecture, uh, approximate 2 lectures will be there. Whatever is important in the core banking portion, we will finish it, and thereafter we will move towards uh, RBI circular and current general banking and finance. Acha, let me ask one thing. Are you people comfortable if uh, someone is uncomfortable in English, or someone is uncomfortable in Hindi? Themba, anyone if you uncomfortable in Hindi, you tell me. I will be finishing this schedule in English only. Further note that you are going to appear the exam, but note that you need to sacrifice your all your sleep, all your food, mobile,
whatever social media you are interacting with. Until you sacrifice, you are not going to success. Believe me, it takes immense much of time and your devotion to get a success. तो अगर आप ये सोचोगे कि हम ठीक है अभी तो जॉब कर रहे हैं हो गया तो ठीक है, नहीं देन नहीं हो सकता। हम आपको बता रहे हैं, आई एम टेलिंग यू दैट वट एवर विल अपीयर इन एग्जामिनेशन, इट इज योर ड्यूटी टू फिनिश दीज थिंग्स। Just I am not going to appear the exam on behalf of you people. If it was possible, I would be appearing on behalf of you people. Thôi bị thôi bị. So, okay, note that if up in upcoming week there is a holiday, continuous holiday of 3 days. You people know banking holiday. Saturday, sir. Sunday, and Monday. Monday. Okay. So should we finish a class of all RBI circulars in one go? Come whatever, whether it takes 8 hours or 10 hours. Okay. हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 8 या 10 आवर्स लें? अगर रात में 11 और 12 भी हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यू पीपल? नहीं प्रॉब्लम है सर। नो सर। हाँ तो ठीक No है, problem, sir. ओके। देखो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़, अभी आप जो भी पेन अपने बॉडी को दे रहे हो 10, 20, 30 डेज का पेन है ये। दिस पेन इज ओनली लास्टिंग यू 20 और 30 डेज, बट आफ्टर दैट योर पेन विल बी रिमूव फॉर एवर। यू डोंट, वंस एसबीआई में गए तो आप कहीं भी स्विच नहीं करते हो तब भी चलेगा। There is no issue of privatization, there is no issue of other staff related issue, there is no issue of posting in SBI specifically. SBI के साथ आपको होम पोस्टिंग का कोई टेंशन नहीं है। अदर पब्लिक सेक्टर में आपको होम, आप ज्वाइन किया तो 400, 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर ही रहना है। तो इसको सब देखते हुए ना इट इज बेस्ट चांस। और सबसे बड़ी बात ये न्यू रिक्रूटमेंट है, यू डोंट नो कि कब एसबीआई स्टॉप कर देगा। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री में पहले भी बहुत दिन तक रिक्रूटमेंट स्टॉप रहा है, तो अभी इसको वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मान के आप प्रिपरेशन करो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डोंट स्लीप, लीव ऑल। स्पेसिफिकली मोबाइल अगर आप कंट्रोल कर लिए तो मैं मानता हूँ आप सक्सेस हो जाओगे। मोबाइल इज सच ए किलिंग थिंग, यू, आपका 1 and 2 आवर्स कैसे जाता है आपको पता ही नहीं लगता। ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए, शॉपिंग का हो, कुछ भी, नथिंग। 1 मंथ आपको एडजस्ट करके चलना है। ओके एवरीवन, ओके विथ नाउ वी शुड स्टार्ट? Yes. Sir. ओके ओके ठीक। तो आज का जो लेक्चर है, स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट? Visible, स्क्रीन sir. इज विजिबल, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। लेक्चर 7। Visible. ओके देखो किसान क्रेडिट कार्ड। अब अगर आप ये पूछोगे यू विल सी दैट कि ये कोर बैंकिंग पोर्शन में है, उस तरह से नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। आज डे टू डे बैंकिंग में आप इसको कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और केसीसी में अगर कुछ पूछा जाएगा तो बस ये पूछा जाएगा कि विदाउट मोर्टगेज लिमिट कितनी है, व्हाट इज द लिमिट। एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर। Yes, ओके, sir. विदाउट, हाँ, कब लॉन्च हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी लिमिट क्या है, और 3 lakhs. कितना और कितना बिना मोर्टगेज का दे सकते हैं। ओके, बिना मोर्टगेज का क्रॉप लोन कितना दे सकते हैं? हाउ मच अमाउंट, एनीवन नोस? 160 Up to 3 lakhs, sir. हाँ, 160 Up to 3 किसी lakhs. ने भी 3 लाख बोला था। नो सर, वो 3 लाख जो है हाँ यस, वो 3 लाख जो है वो इंटरेस्ट वेवर के लिए है, मतलब डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट, वो डिस्काउंट जो मिलता है ना उनको, उसको क्या बोलते हैं, वेवर। इंटरेस्ट रेट का वेवर जो है उसमें है 3 लाख। Subvention. अगर आप 3 लाख इंटरेस्ट सबवेंशन, यस यस, टू बी वेरी क्लियर, अगर आप 3 लाख से ज्यादा का लोन लेते हो तो आपको वो क्रॉप लोन में तो रहेगा बट आपको इंटरेस्ट का सबवेंशन नहीं मिलेगा। ओके ठीक है। तो अगर किसी ने केसीसी में काम किया होगा तो उन्हें पता होगा इंटरेस्ट सबवेंशन हमारा बैंक देता है। कई बार देखो यूपी के ज्यादातर फार्मर्स जो हैं, यूपी में अगर आप एक्सपीरियंस हो बैंकिंग का तो वहां पर इसका कोई मतलब ही नहीं, उनको न तो ज्यादा पता है न तो ज्यादा वहां केसीसी अच्छा चल रहे हैं।
लेकिन अगर यही आप साउदर्न रीजन में जाएं तो वो ज्यादा एनपीए नहीं, उनको सब पता है। उनको पता है इंटरेस्ट वेवर मेरा नहीं आया, मेरा इंटरेस्ट का वो नहीं है, क्योंकि वो टाइमली रिन्यू करते हैं। ठीक है, और पूरे पैसे डाल के रिन्यू करते हैं। ठीक है, ये चीज उनको पता है, वहां पर कंपेरेटिवली अच्छा है। और यूपी में जो काम कर रहे हैं वहां तो मेरा एक्सपीरियंस जब भी रहा है वहां सही नहीं रहा है। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड? दिस इज इश्यूड एज अ टर्म लोन और कैश क्रेडिट, टेल मी। Cash credit, sir. Cash credit, sir. Cash credit, sir. यस, कैश क्रेडिट। वाई कैश क्रेडिट? कैश क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब आपको जितना जरूरत हो आप उतना निकाल सकते हो, और जब आपको जरूरत नहीं है तो आप उसमें पैसे डाल सकते हाँ हो। दैट इज द सिंपल थिंग अबाउट कैश क्रेडिट। अच्छा, करेंट अकाउंट की तरह एक है, बार क्योंकि इसमें दोबारा आप बता दोगे? एक्चुअली कनेक्शन यस, लॉस हो गया। ओके ओके। व्हाट इज केसीसी? इट इज द के मीन्स किसान, सीसी मीन्स क्रेडिट कार्ड। व्हाट इज द क्रेडिट कार्ड? कि इसमें आपको अपने पास से कोई फंड यूज नहीं करना है, बैंक आपको फंड करता है, आपकी लिमिट डिसाइड करता है। द बैंक यूजेस द लिमिट व्हाट एवर यू यूज, एंड whatever limit you are using, it is in the form of cash credit. Means either you can use this limit or you can leave it if it is not useful to you. Then no interest will be charged on this. Okay. Who can take this facility? Any type of farmer, even if there is such a farmer who is not having any land holding, then you can give KCC or not? We can give, sir. Yes, sir. you can yes, you can give this. There is no land holding criteria for KCC, but whatever is important for your CBU exam, if KCC comes, when it was launched, it is 1998। हर स्टेट में हो सकता है अलग डेट को इम्प्लीमेंट किया गया हो, बट लॉन्च डेट है 1998। टेनेंट फार्मर रिसेंटली सेल्फ हेल्प डिजिटल ग्रुप, केसीसी भी इंट्रोड्यूस किया सर। यस यस। हाँ, कई जगह पे MKCC जो चल रहा है कि आप, और पेनिट्रेशन के लिए भी कि सबको 100%। अच्छा, अभी KCC का, चलो तो करंट अफेयर्स पे नहीं जाते हैं, घर करते हैं। घर केसीसी। ठीक है, हाउ इज द KCC लिमिट इज फिक्स्ड? तो KCC लिमिट क्या होता है? ये स्केल ऑफ फाइनेंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, स्केल ऑफ फाइनेंस हर स्टेट के लिए अलग हो सकता है, उसके प्रोडक्शन के बेस पे, किस तरह का वहाँ का क्लाइमेट है, जो वहाँ की टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है। ठीक है, और ये कैसे होता है? स्केल ऑफ फाइनेंस इनटू, सपोज स्केल ऑफ फाइनेंस है एकड़ के हिसाब से, स्केल ऑफ फाइनेंस सपोज 35,000 पर एकड़ है। किसी फार्मर के पास 2 एकर्स है, तो उसको एक्चुअल में अभी स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से, एज पर स्केल ऑफ फाइनेंस यू विल बी गिविंग 35 into 2, 70,000 is the basic limit. Okay, but this is the not only thing that he will produce and it will come to his home. There is harvest, post harvest and machinery repairs, all costs. Then 10% and 20%. 10% is for the towards post harvest and 20% towards the repair and maintenance. Note that this is not going to be asked whatever is the limit. This will be asked how much percentage is given for post harvest expenses. It is the 10%. 10% of what? 10% of what? टोटल जो स्केल फाइनेंस से निकल के आता है। Yes, yes. Total of the basic limit. What is the basic limit? Scale of finance इनटू लैंड multiplied by land holding. लैंड होल्डिंग कितना है? अगर 1 एकर्स को 35,000 है, 2 एकर्स को 70,000 होगा। ये इसका टोटल स्केल ऑफ फाइनेंस के बेस पे लिमिट है। इसका 10% अगर आप करोगे तो 7,000 आएगा। ओके, तो 7,000। अब नाउ द क्वेश्चन विल आस्क व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच you can give to the post harvest expenses of a farmer. It is the 7,000. Okay, and this will be mute your phone. Okay?
Mute. Mute audio, please. Okay. In the subsequent year, first year limit crop insurance, this plus 10% towards cost escalation means it is assumed that 10% every year will be increased. Okay, let me tell you a simple example and it will be calculated. If you are appearing for the promotion exam also, then it will be useful. Suppose scale of finance was, it is based scale of finance is based on crop. Every crop has different scale of finance. Suppose 35,000 was for the paddy and there was 2 acres of land, then 70,000 will be the limit. Okay, it is the basic limit. Now 10% will be given to the farmer. 10% of this, 10% of 70,000 will be 7,000. It will be given for what? Post It will harvest. be given Post for harvest. पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस. पोस्ट हार्वेस्ट मीन्स हार्वेस्टिंग का उसको पैसा हो गया, कुछ उसको घर पे लाके स्टोरेज करके रखना है, उसको घर तक ले आना है, वो 7,000 हो गया. देन हार्वेस्टिंग में जो जो मशीनरी यूज किया, मशीनरी मतलब इट इज आल्सो पॉसिबल दैट ही इज नॉट हैविंग एनी मशीनरी बट ही हैज यूज्ड इज ऑन रेंटेड, ही यूज्ड रेंटेड मशीनरी. तो देन 20% ऑफ दिस, 20% मीन्स 14,000. 7 का, हाँ 14,000. दिस विल बी द लिमिट फॉर द फर्स्ट ईयर. Okay, 91,000. 91,000 it will be a limit for the first year. Now for the second year it will be 10% increase, 9,100. Okay, correct. In the same way you will add 9,100 and then 1 lakh for the second second year, third year, fourth year, fifth year, it is total 5 year. For the 5 year it will limit will be fixed. Okay, now limit will be as that you arrive at 5 years but DP will be as per first year, second year and third year. मतलब लिमिट तो आप इतना दे दोगे लेकिन फर्स्ट ईयर में उसको पैसा उतना ही निकालने दे दोगे जितना उसका खर्च है, मीन्स 91,000. क्योंकि हर साल 9,100, नेक्स्ट ईयर कितना आपको उसको पैसे निकालने दोगे, 91,000 प्लस 9,100, 99,000. ओ नहीं, 1 lakh 200. 1 lakh 100. 1 lakh 100. ओके, फॉर द नेक्स्ट थर्ड ईयर कितना निकालने दोगे? अच्छा 100 का 10%. हाँ ठीक है, इस तरह से कर रहे हैं हम इसको 9,100 करें, जबकि एक्चुअल में आपको 1,100 का 10% यूज करना है. ओके, नॉट द 91. इस तरह से आप उसकी डीपी डिसाइड करोगे और लिमिट 5 ईयर. तो अब क्वेश्चन आएगा, फॉर हाउ मेनी इयर्स द केसीसी लिमिट इज डिसाइडेड? इट इज डिसाइडेड फॉर द 5 years. ओके, for how many years KCC limit is valid? It is 5 years. कल्टीवेटिंग अगर मोर देन 1 क्रॉप एक सीजन में कर रहा है तो आप हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग निकालेंगे और वही उसको लिमिट देंगे. करेक्ट. टर्म लोन फॉर इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं. ओके, इन्वेस्टमेंट मीन्स कोई भी मशीनरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए या लैंड इंप्रूवमेंट के लिए आप दे सकते हो. मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट क्या होगी? दैट विल बी फॉर द 5th year प्लस एस्टिमेटेड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, दैट विल बी द मैक्सिमम. अगर कस्टमर ये बोलता है कि उसको कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी उसमें जरूरी है, उसे जरूरत है, उसे चाहिए, तो आप उसको वो पैसा उसमें लिमिट में ही इंक्लूड करके देंगे अगर वो लॉन्ग टर्म कोई कॉस्ट बता रहा है तो. नोट दैट ये इंपॉर्टेंट है, ए फ्लेक्सिबल लिमिट ऑफ 10,000 to 50,000 may be provided based on the land holding and crops grown including post harvest warehouses related to needs. अब ये किसके लिए है? ये यहाँ पे देखना पड़ेगा, मार्जिनल फार्मर्स के लिए. करेक्ट. अच्छा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स सबको पता है? नहीं पता है तो हम प्रियोरिटी सेक्टर में तो बताएंगे, यहाँ भी बता देंगे. व्हाट आर स्मॉल फार्मर्स? Small farmers, 1 to 2 hectares sir, land holding का. मार्जिनल फार्मर्स? Less than 1 hectare. Marginal farmer up to 1 hectare, small farmer 1 to 2 hectare. यस यस यस. अच्छा, एक चीज और है,
अगर उसको 1 हेक्टेयर है तो वो किस में आएगा, स्मॉल फार्मर में आएगा, मार्जिनल फार्मर में आएगा? 1 Margin. हेक्टेयर ही इज हैविंग, Marginal farmer. Marginal farmer, sir. यस यस। ये अप टू का थोड़ा एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। अप टू का मतलब ये होता है कि वो डिजिट इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर 1 to 2, अप टू 2 बोला और 1 to 2 बोला तो 2 उसमें इंक्लूडेड है, करेक्ट। ये कंफ्यूजन मत रखना कि 1 से 0 होना चाहिए। सबसे ज्यादा इस यूपी में सबसे ज्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है। ओके, वैलिडिटी ऑफ रिन्यूअल इज 5 years एज ऑलरेडी टॉक टू यू, ठीक है। व्हाट इज द सब्सिडी, इंटरेस्ट रेट सबवेंशन? 4%, Hmm? रेटेड परसेंट दोनों मिलता है ना सर? 4% per What annum. is the 2% upload. वो तो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट अगर उसका होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2%, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव 3% टू द फार्मर्स मेकिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी सब्सिडाइज एट 4% पर एनम, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता, कितने परसेंट पे आप देते हो मेनली? 12%। 7% KCC? interest subvention and 12% यस other. यस यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड शशि। 7%. 7% अगर आप ज्यादा परसेंटेज पे दे रहे हो केसीसी तो इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा, ये क्राइटेरिया है, ओके। Up to 3 lakhs, sir, only. इंटरेस्ट सबवेंशन 3 लाख तक अवेलेबल ही है, 3 लाख से ऊपर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा, ओके ठीक। देखिए 7% पर आपने दिया तो इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव 3%। तो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव देगा तो उसको 3% मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट रेट? 4%। 4%। अगर ये प्रॉम्प्ट रीपेमेंट नहीं है फिर भी उसने पेमेंट किया तो उसको इंटरेस्ट सबवेंशन कितने परसेंट का मिलेगा? 2% का, 5%। और ये हो जाएगा 5%। अभी ऐसा नहीं है कि 3 और 2 5% मिलेगा उसको, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का 3% मिलेगा तो ऑलरेडी उसमें रीपेमेंट वाला इंक्लूडेड है, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का वो 1% ही है, एक्स्ट्रा 1% उसको, ओके। तो इफेक्टिव, अगर क्वेश्चन में ये आता है व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ केसीसी, 7%। इंटरेस्ट रेट फॉर केसीसी 7%। अगर वो इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें दे रहा है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का 4%। देन 4%। अच्छा देखो, अक्सर क्या होता है अगर 7% और 4% दोनों आता है ना ऑप्शन में, आपको ये जान के चलना है कि ये मानना है कि ये इंटरेस्ट सबवेंशन इंक्लूड करके तो नहीं पूछ रहा है, तो वो ऐसा पूछेगा व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ केसीसी ऑन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, then it will be this, and what is interest rate for KCC, then it is 7%, okay। ये स्टेट No स्टेट margin, गवर्नमेंट भी देता है ना सर? हाँ वो अलग चीज है, स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है, वो इसमें नहीं, ये ऑल इंडिया गाइडलाइंस है। स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने से कुछ दे रहा है तो दे सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। या तो इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट बोले कि हम पूरा इंटरेस्ट वेवर चाह रहे हैं, हम पूरा इंटरेस्ट वेवर दे देंगे, आप मत करो, तो बैंक के पास पैसा आ जाएगा, बैंक उससे अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि मार्जिन। अच्छा ये बताए मार्जिन, केसीसी में मार्जिन कितना होता है? 0। कोई भी मार्जिन नहीं होता, क्योंकि जो कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी मार्जिन उसमें रहता है। जैसे गोल्ड लोन में कितना मार्जिन लेते हैं? 25%। 5% goal on नहीं, वो तो 22. एलटीवी रेशियो होता, एलटीवी रेशियो है 75, इसलिए आप 25 बोल रहे हो। Depends मार्जिन on कितना लेते हैं? नहीं नहीं, अगर आप ये बताइए आपके बैंक में जो गोल्ड का रेट आता है तो वो गोल्ड रेट में मार्जिन आप लेते हो क्या? फिर नहीं सर। नहीं लेते, क्यों? क्योंकि जो
वेरी गोल्ड गुड सर। रेट में कैलकुलेट होता है, वो ऑलरेडी उसमें मार्जिन इंक्लूड रहता है। तो अगर आप किसी का गोल्ड लोन दे रहे हैं तो फिर से आपको मार्जिन कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। सेम इन केसीसी, आप उससे मार्जिन नहीं ले सकते अगर उसका बोला हुआ है। अच्छा, केसीसी में कितने तक का लोन दे सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है सर, हाउ मच ज्यादा अमाउंट? कितना भी दे सकते हैं सर। कितना भी दे सकते हैं, यस। 3 लाख से कंफ्यूज मत होना, 3 लाख केवल तब के लिए है, दिस इज सबवेंशन फॉर के लिए। ओनली, यस 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 यस, 3 lakhs is only for interest subvention. Sir, for mortgage, any limit is there, sir? Hello? Yes, For mortgage, sir, for mortgage, how much amount, sir? 3 लाख का ऊपर वो mortgage ऐसा है और कुछ नहीं? ये ये सिर्फ मोर्टगेज तो आपको सबवेंशन के लिए है, 1.6 पे 3 लाख। करना है। 3 लाख का मोर्टगेज तो आप सबवेंशन 1.6 मिलेगा। पे करोगे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, मोर्टगेज आपको, चलो ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, हालांकि एग्जाम में तो बहुत कम पूछा जाने के चांसेस है। ठीक है, कि आप कितना जो है अमाउंट दे सकते हो विदाउट मोर्टगेज। तो आरबीआई की गाइडलाइन से 1.6 है। ओके, 2 लाख के लिए एक बार बात चली थी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, लेकिन उसका कोई ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। अगर ऑर्डर आता है तो आप उसको 2 लाख तक भी दे सकते हो। ओके, सर जो HF KCC वाला होता है फॉर ये एनिमल हस्बेंड्री, उसका तो 2 लाख है ना सर? 2 लाख हाँ, बस। वो तो नया आया है ना, वो नया जी। लॉन्च हुआ है केसीसी। हाँ, ये न्यू लॉन्चिंग है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, सिक्योरिटी, हाइपोथिकेशन ऑफ एनिमल। अच्छा, जो जो केसीसी देते हैं उन्हें पता है कि अगर एनिमल्स और इन सब के लिए देते हो तो आप उनकी टैगिंग कराते हैं, देखे हैं कि नहीं? हम्म, वो जो टैगिंग कराते हैं वो एक तो इंश्योरेंस कराते हैं, उसका भी टैगिंग है, और दूसरा इसलिए भी कि वो हाइपोथिकेट हो जाता है, वो बैंक के हाइपोथिकेशन में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, कोलैटरल और प्राइम सिक्योरिटी और नहीं, कोलेटरल और प्राइम सिक्योरिटी में किसी को डिफरेंस पता है क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ कोलेटरल एंड अ प्राइम सिक्योरिटी? Collateral is hypothecation of stocks. जो primary security is hypothecation, which is created out of bank funds. यस यस, आप अपने बैंक के फाइनेंस से जो क्रिएट करते हो वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। ठीक, और उसके अलावा अगर कुछ और ले सकते हो तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। ओके, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सिक्योरिटी में प्राइमरी और कोलेटरल दोनों हो? जी सर। जनरली अगर अमाउंट ज्यादा है तो आप ये कह सकते हो, हाँ, आपने हाउसिंग लोन दिया, उसका प्लॉट ही 50 लाख का था, 10 लाख रुपए का आपने हाउसिंग लोन दिया। ठीक है, दूसरे सिक्योरिटी में एक यूज ही कर है तो या सकते तो उसे, हाँ, तो आप दूसरे लोन में उसे यूज कर सकते हो, लेकिन एक लोन के लिए एक सिक्योरिटी, ओनली अ सिंगल सिक्योरिटी कैन बी आइदर कोलेटरल or the primary security, but if it is being used in another loan it will be as a collateral. Okay, interest subvention, ये देखिए, up to credit limit of 2 lakhs to meet working capital requirement will be eligible for additional interest subvention only if credit summation for 1 year from the sanction or renewal is less than debit summation. अच्छा, ये किस लिए लिखा है पता है? 2 lakhs वाला आपको पता है ना? एनिमल हस्बेंड्री वाला केसीसी आया था, जी सर। उसमें अगर ऐसा है, अगर आप किसी भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए दे रहे हो तो आप 2 लाख तक भी इंटरेस्ट सबवेंशन आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन उसमें 3 लाख तक इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है। ओके, केसीसी अगर फार्म क्रेडिट के लिए दे रहे हो तो आप, अभी हम प्रायोरिटी सेक्टर जब पढ़ेंगे आरबीआई के सर्कुलर में तो हम फार्म क्रेडिट और इन सबको
देखेंगे। तो बस इसको इसमें आपको इतना याद रखना है कि कितने अमाउंट का है, केसीसी कब लॉन्च हुआ था और कितना बिना उसके दे सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का जो नया क्लासिफिकेशन आया है। व्हाट इज द माइक्रो इंटरप्राइजेस, एनीवन नोस? सर टर्नओवर माइक्रो होता है इंटरप्राइजेस, माइक्रो का अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ है, स्मॉल का अप टू 5 करोड़, और मतलब इंटू 5 करके होता है टर्नओवर। यस यस। अच्छा, ये नहीं माइक्रो पता, का ये सब इन्वेस्टमेंट एंड 5 जान करोड़ टर्नओवर का जान रेशियो। लीजिए। हाँ ठीक है। देखिए, किसी भी इंटरप्राइजेस के पास दो चीज होती है। एक होता है उसके पास बैंक का अकाउंट और उसका बिल बुक नॉर्मल कोर्स में, और एक उसके पास होती है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब मशीनरी, जिससे वो, ये दो के बेस पे क्लासिफिकेशन किया है गवर्नमेंट ने। क्या बोला है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ओके। अच्छा, केवल इसी को क्यों किया? क्योंकि इनको बहुत सारा छूट है। ये एक्सपोर्ट करेंगे, इनको कस्टम ड्यूटी में भी छूट है। अगर कोई ऐसी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे इनको, जिसके थ्रू ही वो एक्सपोर्ट करेंगे, तो इन सब चीजों में इनको छूट मिलती है। इस वजह से इस पे गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रही है, और इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्लासिफिकेशन है। गवर्नमेंट ने बोला है या तो मशीनरी इसकी जो है 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लांट और मशीनरी, प्लांट और मशीनरी मतलब जहां पर ये अपना मशीनरी में ऐसा नहीं केवल मशीन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ लगी होती हैं जो प्रोडक्शन में इसेंशियल हैं। तो उसको टोटल कास्ट जो उसकी होती है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो 1 करोड़ तक होनी चाहिए। या उसका जो बिल बुक है या अकाउंट स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से उसका टर्नओवर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, कितना हो गया? 5 करोड़। 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 5 करोड़ तक हो सकती है। अगर किसी इंटरप्राइज का 5 करोड़ टर्नओवर है, तो वो माइक्रो में आएगी, स्मॉल में या मीडियम में? आप ये अपने मोबाइल की स्क्रीन पे भी जूम कर सकते हैं, अगर आप मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं। बताइए, माइक्रो इंटर